Hello students, welcome to a very special show. Now why it is special? Because as you can clearly see on your screen, in today's video discussion, what we are going to discuss, how you all can score a good amount of marks, that is 30 plus in GA portion. Yes students, I am your host and host Gopal Anand will tell you how you can score GA. So it actually goes like this, that Gopal Anand is telling you how you can do GA. Okay, just kidding. Let's begin today's topic. You can clearly see how you can score general awareness 30 marks, more than 30 marks in the upcoming SBI PO mains, and we all know that PO mains exam is going to held on 4th of June, and that is expected. And it may be, in my opinion, many of you are, I think you all are waiting, okay, what will be my prelims result. So students, first of all, you don't have to focus on that right now. You have given the prelims exams and just wait and keep that thing aside before the examination or before the SBI PO mains. We also have BOB, we also have NIACL, we also have NICL, we have DB, that is Dena Bank, and etc. So in all these examinations, GA portion is going to come, and general awareness is same for all the examination. Yes students, if we talk specifically about SBI PO mains, so let's see the paper pattern. In mains examination, GA portion is named as General Economy Banking Awareness, and it comprising of 40 questions, 40 marks, and the biggest plus point, you have a particular time. Yes students, you have 35 minutes to attempt this particular portion, and what we are seeing that the examination is going to happen on 4th of June. So let's create one timeline. So before we have May, then we have April, then we have March, and then we have February. So students, these are the most important 4 months which you all have to prepare. Yes students, we don't want you to just have a read of Jan. You can just read a Jan, but for the examination, what you have to do, you have to focus on these 4 months: February 2017, March 2017, April 2017, and May 2017. With that, we will be going maybe off 1st of June, क्योंकि examination online होता है, so there might be a possibility कि जो question है मे भी जून से पूछ ले, but जून इतना नहीं पूछेगा. May, April, March, Feb, these are the most important 4 months. Clear? Now, if we talk about clearly in detailing, they have given the importance of 3 headings. What are the 3 headings? They have given you general, they have given you economy, and they have given you banking awareness. And if we go through the last year examination, it was nothing but it was based on, we had current affairs, which we can say at general awareness. Then we had banking, जिसको हम कह सकते हैं banking awareness, and then we have static awareness, जिसको हम कह सकते हैं SA. So this was the pattern of last year. Last year के examination में हमने देखा कि current affairs आया, banking awareness से static awareness आया. So to have a clear idea what कि किस तरीके से था last year का general awareness paper, we will be seeing some of the important questions. Clear? So to sum up, these are the 4 months which are important: February, March, April, May, and maybe for Shagun purpose you can just learn 1st of June. Clear? So students, you can clearly see 40 questions, 40 marks, 35 minutes. This time has given you the opportunity to score more. So on this note, let's discuss what was the last year paper GA questions, some of the important GA questions that were asked in SBI PO mains 2016. So let's have a look. Mozambique capital. So clearly we can see that it is a static
GA question, mainly because Mozambique was in news last year. This is a big reason why it happened. इसके अलावा one question was there from State Bank of India agreements. So obviously this is what this is known as, students, banking current affairs. We can say this is BCA, banking current affairs. Similarly, which of the following headquarter? This is, you can say, a banking awareness. Then Finotech is a payment bank. Obviously this year also for sure small plus payment banks are very important. These are very important this year also. Then if we talk about the next one, then we have one question from DBS Bank, then one question from State Bank Bengal. So clearly you can see that SBI has a tendency to ask banking current. Students, अगर हम बात करें static, I know static is very wide, बहुत wide है यार static. आप भी मानते हो ये चीज़, आप लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, तो बट कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है. We have created some of the, we can say, the most important हेडिंग्स जो कि मैं आप लोग के साथ इस वीडियो के अंदर ही शेयर करूंगा, जो कि आप प्रेफर कर सकते हो, जो कि आप लर्न कर सकते हो. क्लियर? So on this note, let's move on to the next one. So these are some of the important questions. Ease of doing business index is developed by. So students, this is one of the new thing. अभी तक क्या होता था, हमारे पास आता था कि किसने टॉप करा, रैंक के बारे में पूछता था, बट यहाँ पे उसने पूछा है कि किसने बनाया, who is the creator. तो when we will be discussing about this particular thing, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यही चीज़ हमने क्या करी है इस बार, हम इस बार कैप्सूल आपको जो हम प्रेजेंट करेंगे for SBI PO means we will include this कि who is the creator, who is the maker. Then we have some of the current affairs, which is mainly जब भी कोई international organization, students, whenever there is any international organization, now international organization, it could be like ADB, it could be like World Bank, it could be like IMF and etc, or we can say IBRD. जब भी ये न्यूज़ या ये organizations न्यूज़ में आती है तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और इस साल भी हमने देखा है. एंड फॉर दैट ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग अ स्पेशल कैटेगरी रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़, और ये भी आपको मिलेगी कैप्सूल में. कैप्सूल बहुत जल्द लाइव होने वाला है, डोंट वरी. इसके अलावा मुद्रा स्कीम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. स्टेट ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस बार रिपोर्ट्स में हम ये फोकस करेंगे. देन अगेन दिस इज अ प्योर बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन, BSBDA के बारे में. BSBDA की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्वेश्चन किस में से आया, ये क्वेश्चन आया है फिनेंशियल इंक्लूजन में से. देन उसके अलावा वी हैव हाउसिंग फॉर स्कीम, ऑब्वियसली नेशनल पार्क्स प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. These are important for the examinations. फिर उसके अलावा then we have the GDP growth rate, then we have कृष्ण कल्याण से जो कि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, summits, and then we have small bit on small financial bank. तो clearly you can see these are not tough. अगर हम ये बात करें तो लास्ट ईयर also the portion of GA was not tough, और basically ये एक तरीके से डूबते को सिनके का सहारा जैसी स्थिति हो गई थी. मतलब इतना टफ एग्जाम था, बट बच्चे they all were satisfied with GA, and once again that is why we have a huge demand of capsule दो क्योंकि all these points were there in the capsule only. तो कंटिन्यू करते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. इन FDI इंटेलिजेंस रिपोर्ट किस स्टेट ने FDI के बारे में टॉप करा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. स्टेडियम्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं. फिर इसके अलावा इंडिया का पहला डिफेंस, ये तो देखो फर्स्ट इन इंडिया करेंटली, ध्यान रखना है कि टॉपिक होता है फर्स्ट इन इंडिया करंट में, मतलब जो रिसेंटली इंडिया में शुरू हुआ या हाईएस्ट हुआ, कुछ लॉन्गेस्ट हुआ. तो जो जम्मू वाला, जो जम्मू श्रीनगर पे हाईवे जो ब्रिज आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर, किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, तो ये अपने आप दीज फैक्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट. इसके अलावा यू प्योर बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, FRBM, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट.
Then we have one of the question which of the following is not a money market instrument. Clearly banking awareness का question. Universal banks, FDI limits, World Bank growth. तो obviously ये change हो गई, ये मत पढ़ लेना. तो उसे आपने गलत बता दिया, नहीं ये change हो चुका है. We are discussing last year questions. आप क्लियरली देख सकते हो ये questions which were asked in SBI PO Mains 2016. Then about NATO summit, BMB going to merge with, इस बार तो merger हो भी गया. कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हेडक्वार्टर. तो क्लियरली आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अलग से कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया. नो स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक दैट. दीज आर बेसिक क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस है जो कि हम डे टू डे में ना, ओके अब इतने सारे सोर्सेज जहाँ पे हम आपके साथ करंट अफेयर शेयर करते हैं, तो अब वहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ते हैं और वही आपको करना है. यू हैव टू मेक इट ईजी, यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स वेरी सिंपल. क्लियर? So let's move on. Now if we talk about the analysis and the analysis by Day 24/7 and Banker Data team, किसका एनालिसिस करा है सर? अब हमने करा है जीए पोर्शन का. और ध्यान रखना हमारे एनालिसिस आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एनालिसिस. व्हाई? बिकॉज अभी रिसेंटली जो हमने एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को कवर करा था सेंटर पे भी और स्टूडियो से भी, वही एनालिसिस पब्लिश हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में. तो यू कैन हैव अ गुड अपलॉज ऑन दैट. सो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. अगर हम बात करें एटलीस्ट एसबीआई, मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ रिलेटेड टू जीए के, फॉर जीए उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा है. तो लास्ट में तो जीए था वो सिंपल था. द क्वेश्चन वर क्वाइट डायरेक्ट. करंट अफेयर्स अगेन डोमिनेटेड द सेक्शन. डू रिमेंबर दिस. विद lesser number of static questions this time again SBI can emphasized on current affairs questions. Banking awareness questions were also there and there were some questions from static. अगर हम एक अप्रॉक्स एक एस्टिमेट बनाए, एक ऐसे एक रफ एस्टिमेट दे आपको, तो these are the now seeing the analysis of the questions, we can clearly say in the examination 30%, 20% and 50%. तो क बा सा. लास्ट से भी मैंने जब मैं कैप्सूल डिस्कस किया था तब मैंने शुरू किया था कबासा. सीए से करंट अफेयर्स हुआ, फिर हुआ बैंकिंग अवेयरनेस और फिर आया स्टैटिक में. मतलब अगर मैं दो पार्ट कर लेता हूँ, या मैं बैंकिंग और मैं करंट अगर मैं कर लेता हूँ, स्टैटिक के कुछ टॉपिक्स करता हूँ, ओनली फ्यू टॉपिक्स, तो मेरा बहुत अच्छा चांस है टू गो फॉर द इंटरव्यू एंड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन. क्लियर? Now let's analyze it some further. जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, this 50%, this red mark is belong to current affairs. This black portion is B से black, B से banking awareness, and this blue portion is static. क्योंकि रिवर्स भी पढ़ने होते हैं, डाउन भी पढ़ने होते हैं, तो ठीक है. This is the one, और मे बी इस बार एग्जामिनेशन में 5 to 10% का फ्लक्चुएशन वी कैन एक्सपेक्ट, बट मेजॉरिटी जो है वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होने वाला इस बार के एसबीआई पीओ मेंस 2017 में भी. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है वो ये आता है, सर अब आप ये बता दो कि व्हेन शुड वी बिगिन. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर शुरू कब से करें. तो यार हम तो यही कहते हैं, क्या कहते हैं चलिए अभी हम जानते हैं. तो व्हेन शुड वी बिगिन. एक मैंने आपको रफ एस्टिमेट दिया है कि आप 4 मंथ्स पे फोकस करो. 4 मंथ्स कौन कौन से हैं? फेब, मार्च, अप्रैल, मई. और जो आपका कैप्सूल भी हम बना रहे हैं ना, कैप्सूल में भी वी आर टेकिंग टिल 15th मई. कैप्सूल में भी हम 15 मई तक का बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम एक आपको 1 जून के अराउंड लास्ट 15 डेज देंगे, क्योंकि वी हैव टू गेट द कैप्सूल डन. मे बी हम थोड़ा पहले करते, बट 15th में हमने टाइमलाइन लिया एंड 15 में कोई हम सारी चीज़ें लाइव करेंगे. तो 4 मंथ्स दैट्स मोर देन सफिशिएंट. चलिए अब कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो दी आंसर टू दिस क्वेश्चन, यस इसका आंसर 4 महीने है, बट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि तो द परफेक्ट आंसर इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीए स्पेशली इज कि भैया आप लोग
जब जागो तब आपका सवेरा होगा अगर आपकी हालत बुरे है। मतलब हालत क्या, वो तो हमें पता है, जीए आपने पढ़ना नहीं एग्जाम से पहले 2 महीने में। जस्ट इमेजिन, एक मैं फैक्ट आपको लिखता हूँ कि मैं खुद सोचता हूँ कि यार एक स्टूडेंट 3 से 4 महीने जो है वो कितने दिन में पढ़ना चाहते हैं। कैसे 3 से 4 दिन आप मुझे 15 दिन में चलो पढ़ा दो, ये चलो सर 15 दिन तो नहीं, 1 महीना मैं आपको देता हूँ। खुद सोचे यार, ये तो वही बात है कि 3 से 4 महीने का खाना मैं 1 महीने में खाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर करोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी और मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए जो अब जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड है वो आपको थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टू डू एक्सेप्शनली वेल इन दिस सब्जेक्ट वी हैव टू गिव रेगुलर टाइम टू दिस सब्जेक्ट. It could be maximum 1 to 1.5 hours daily and the result you will see yourself. देखो मुझे पता है कि टाइम देख के कुछ पढ़ाई नहीं होती, बट ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको ज़्यादा समझना नहीं है. हाँ, बैंकिंग का पोर्शन है where you have to understand some of the important topics, but even those topics, current and static, mainly you have to learn. और मेनली लर्निंग में ना कह के मैं उसको कहूँगा रिमेम्बरेंस पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करो. रीड करते रहो एंड जस्ट गिव द एग्जामिनेशंस. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आप कोई भी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो तो सोचते हो मुझे 1 दिन में रिजल्ट चाहिए. अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन भी शुरू करते हो तो आप सोचते हो मैं 2 दिन पढ़ूंगा मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए. नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. एंड यू कैन क्लियरली सी द नेक्स्ट पॉइंट बिलोंग्स टू दिस पॉइंट ओनली. बट टू रिमेंबर द इम्पैक्ट विल नॉट कम ऑन डे 1. पहले दिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने का. It will come in some weeks or in some days we can say, and once you start solving the questions and the mocks, इसका impact आपको कब दिखेगा? जब आप mock लगाओगे, जब आप quizzes करोगे, तब आपको इसका impact दिखेगा. और for sure गारंटी दे रहा हूँ मैं, इसका impact दिखेगा. और इसके बाद अगर आप अभी से रेगुलर पढ़ना शुरू कर देते हो, उसके बाद the aim is to do great in final exam, and I know you will surely do. क्यों? क्योंकि बैंकर्स अड्डा और अड्डा 24/7 कैप्सूल है ना, वो तो लॉन्च करेंगे ना, उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को. वो मेरा काम है. आई एम डूइंग, टीम इज वर्किंग ऑन दैट. विल कम आउट विद इट वेरी सून. बट अभी से पढ़ना शुरू कर दो, रिवीजन करना शुरू कर दो, ताकि जब कैप्सूल पढ़ो तो कोई नया ना लगे. एंड इट्स जस्ट लाइक एन ईजी गेम. एंड दैट्स द फीडबैक. और अगर कैप्सूल की बात करें, इट्स द फेमस प्रोडक्ट. बच्चे टैग कर रहे हैं फेसबुक पे, सर कैप्सूल कब आएगा. ठीक है यार, हम वी आर वर्किंग ऑन इट. और अच्छा बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ना अच्छी चीज बनने में. तो दैट्स द फीडबैक ऑफ अ कैप्सूल. एंड डू रिमेंबर आई विल बी देयर विद माय कैप्सूल डिस्कशंस को सिंपल तरीके से, जस्ट लाइक द सिमिलर वे यू कैन क्लियरली सी माय वॉइस विल बी देयर एंड द कंटेंट विल बी देयर, बिकॉज आई ओनली नो content is very important for GA, and I will be providing that in this particular way. So do share your feedbacks. This is a new way of providing the content, providing the delivery, and I'm very sure you will like it because content is very strong in this, and we have covered almost all the important points. So जब जागो तब सवेरा 4 महीने हमें करना है. 1.5 घंटा एटलीस्ट हमें देना ही देना है. मॉक लगाने, क्विज़ेस लगाने, और एंड में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे और आपको फिर कैप्सूल पढ़ना होगा. So now let's talk about the must-do things that you all should do to score 30+ in GA. Yes students, now अब आप लोग को सोचना है कि मुझे किस तरीके से 30+ लेकर आना है और उसके लिए क्या क्या हमें करना है. चलिए डिस्कस करते हैं some of the important points. First basic point है read newspaper. Yes students, we're not asking you कि आप पूरा पढ़ो, not all, but the front page तो पढ़ना ही पढ़ना है. विद इट इकोनॉमी पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो, बिजनेस पढ़ो, स्टेट्स पढ़ो. और मेनली अगर हम बात करें तो हिंदू, और इसके लिए तो आपका कुशर का रेगुलर शो भी हो रहा है, तो कुशर का आप शो देखो. और आई थिंक उसमें वो सारी ये चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रहे हैं. तो फॉर श्योर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज दैट रीड द न्यूज़पेपर. एंड देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो मैं बहुत चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप ये करो. मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है. स्टार्ट राइटिंग करंट अफेयर्स इन जस्ट सिंगल लाइन. हाँ, जो क्रक्स है, अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रक्स, द मेन पॉइंट. क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा डायरेक्ट ही आएंगे, वो ज़्यादा डीपली नहीं जाता. क्योंकि यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस. आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस, आप इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसमें ज़्यादा डीप वो नहीं जाता क्योंकि आपके पास और भी एग्जामिनेशंस होते हैं. मेनली द क्रक्स सो दैट यू फोकस ओनली ऑन द इम्पोर्टेंट पोर्शन. ठीक है,
सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, रिमेंबर स्टूडेंट, फॉर स्टार्टिंग we have to start, that's a very important thing, we have to start with the state or countries or organizations which are in news, as we have seen the question patterns like this। मतलब ये सीधी सीधी बात ये कि अगर यूपी न्यूज़ में है तो यार मुझे क्या करना है, सबसे पहले यूपी से रिलेटेड जो भी पॉसिबल स्टैटिक है वो मुझे कवर करना है। और वो आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सर, ये कहाँ मिलेगा यार? अड्डा 24/7 पे आर्टिकल डले में ऐप पर, बैंकर्स अड्डा पे भी आर्टिकल डले हुए, यूट्यूब पे भी वीडियोस गए हुए हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी सोर्सेज फॉर दिस ऑल्सो। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वट एवर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, all those sources are available and we are providing like that because we know the strategy to do GA. This should be the strategy, this is the main strategy जो कि आप लोगों को follow करनी चाहिए। Clear? Now let's move to the next one. Focus mainly on the important current affairs, as there is a difference between, that's a very important point, news and current affairs. Yes students, देखो हमें पूरा न्यूज़ नहीं करना, हमें इनमें से जो इम्पोर्टेंट जो सीए हैं हमें वो करने हैं। मतलब जो मेरा जो फोकस होना चाहिए, दैट विल 1 2 3 4 5 6, मुझे पूरा सर्कल नहीं करना, मुझे 6 स्मॉल सर्कल से मेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे कम ही करना है, मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एंड टू मेक इट इजियर फॉर यू, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू, हम आपको क्या प्रोवाइड करें, हम आपको डेली जी के अपडेट ऐप पे जा रहा है, वेब पे जा रहा है, bankers.com पे जा रहा है, अड्डा 24/7 ऐप पर जा रहा है, हिंदू शो दोनों जगह जा रहा है, अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, वीकली करंट अफेयर शो ये भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है अड्डा 24/7 पर। इसके अलावा मंथली हिंदू रिव्यूज हम आपको दे रहे हैं। तो सोर्स आपको और क्या चाहिए यार, ऑल दी सोर्स वी आर गिविंग यू होल लॉट ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल। कंटेंट कहाँ का अवेलेबल है? bankersadda.com, अड्डा 24/7 ऐप, गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली इट इज देयर इन योर पॉकेट ओनली, बस पॉकेट में से निकालना है आपको और पढ़ना शुरू करना है। और इसी के साथ द थर्ड वन इज अड्डा 24/7 ऐप और अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। क्लियर? Now let's move to the next one. You have to give importance to banking awareness, as only about reading RBI will not going to help you in the examination. So for this I will be sharing the most important banking awareness topics which you have to cover, and obviously for banking awareness what we are providing, कुछ सर का यार BBM चल रहा है, BA बैंकिंग मास्टर शो उनका चल रहा है यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा रेगुलरली अड्डा 24/7 ऐप पर आर्टिकल्स जा रहे हैं related to financial management. So there are many things which are going on. For this we have the BBM show on our channel, and obviously I will be coming up with a special series. ये surprise था, but I will be coming up with a special series जहाँ पे मैं कुछ important banking के aspects cover करूँगा with respect to RBI and with respect to the current banking awareness. Clear? And the most widest part in the GA portion is SA, that is not sscadda.com right now, it is static awareness, but SSC Adda पे आपको static awareness की quiz जरूर मिल सकती है, but you have to do it with the most briefer way. हम सीधी बात करते हैं यार, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वाइड है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हम अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरा मेरे पास स्क्रीन था बट मैंने कहा यार मेरा स्टैटिक सिर्फ ये रहेगा, मुझे इतना बड़ा स्टैटिक नहीं करना, मुझे अपना स्टैटिक करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सेफर साइड पे चलना है और मुझे अपने जो एक्यूरेसी है उस पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैं तुक्के मार के आऊँगा। तो मेरा फोकस है, मुझे पता है कि 10 से 15 स्टैटिक करने हैं टॉपिक्स, तो मैंने वही करने, बस वही करो और पूरा डिटेलिंग में मत जाओ। The most widest part in GA is SA, but you have to do it with the most briefer way, as we can't learn, I know we can't learn each and every point. So to help you out in that, we have the static awareness show जो कि छवि मैम करती हैं. We have a static awareness show. Static awareness requires a bit research, and before we start learning this, so don't worry on that. I will be share some of the important headings. इसमें थोड़ा सा research रहता है. Research in the sense we have to see what are the
topics that we have to cover. We have to come out with all the topics जो हमें करने होते हैं. So उसके लिए कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है यार. We will be coming up with important. We have a static awareness show. We have a static awareness capsule attached with the Bankers Adda GA capsule. So don't worry on that. और कुछ important headings होंगी जो मैं कुछ ही देर में आप लोग के साथ शेयर करूँगा. करंट अफेयर्स पे फोकस करो, न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि करंट अफेयर्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूज़. बैंकिंग अवेयरनेस पे सिर्फ आरबीआई पढ़ के नहीं जाना है और ऐसे को एक अलग स्टाइल से पढ़ना है. क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड इज सर व्हाट टू डू. कि आप अब ये बता दो, आपने बता दिया कि हमें 4 महीने करना है, कि सर हमें टॉपिक्स क्या क्या करने हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें फोकस करना चाहिए. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट. तो स्टूडेंट्स, हियर आर द लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हेडिंग्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जिसमें आपको नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, इसको आप कह सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन वी हैव स्टेट्स इन न्यूज़, बिजनेस, देन अपॉइंटमेंट्स. फॉर श्योर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. समिट्स, स्कीम्स, कमिटीज. इंपॉर्टेंट डेज मेनली इस पे मैं फोकस करूंगा जो करंटली हैपनिंग है, मतलब जो भी हम 4 मंथ्स कर रहे हैं, 4 मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज आप कर सकते हो. You can easily do. इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, बिल्स पास्ड एंड मिसलेनियस. तो all these categories will be available. देखकर ही बनाई गई है, देखकर ही बताया गया है in the Adda 24/7 कैप्सूल. जो अभी हम कैप्सूल लॉन्च करने वाले हैं उसमें ये सारी कैटेगरीज होंगी, तो डोंट वरी ऑन दैट. ठीक है. नेशनल है, इंटरनेशनल है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, स्टेट्स, बिजनेस, अपॉइंटमेंट, समिट्स. और अगर आप कह रहे हो सर मुझे अभी से पढ़ना है, तो हमारी मैगजीन आती है कंपटीशन पावर, उसमें भी हमने इसी तरीके से कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, तो यू कैन रीड फ्रॉम दैट आल्सो. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस. और मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस के जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, दीज आर सम आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स, कुछ थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है. बट अगर हम कंटेंट की बात करेंगे, द कंटेंट इज नॉट दैट हाई. चलिए बात करते हैं व्हिच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहला बाप ऑफ ऑल द बैंक्स, आरबीआई, उसके सारे फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी सब. उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स, फर्स्ट इन बैंकिंग सेक्टर, मे बी क्वेश्चन ये पूछ सकता है. बैंकिंग करंट अफेयर्स, जो कि हमने अलग से कैटेगराइजेशन दिया हुआ इन द कैप्सूल. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर सिस्टम्स, और सिर्फ एनईएफटी, आरटीजीएस नहीं, अब थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आईएमपीएस भी पढ़ना पड़ेगा, यूपीआई भी पढ़ना पड़ेगा और भीम भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स. देन वी हैव सरफासी एक्ट विद एनपीए ऑब्वियसली, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिवर्स मॉर्गेज लोन, वेरी स्मॉल टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ मनी, और एक नया एक्ट जिसमें मैं इस बार फॉर श्योर मैं एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये मुझे कहाँ से मिला, ये मुझे मिला टॉपिक फ्रॉम माय बैंकिंग करंट अफेयर्स. क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. कुछ टॉपिक्स हमने कंटिन्यू करे हैं. प्लास्टिक करेंसी के बारे में आपको स्टडी करना है, टाइप ऑफ बैंक्स फॉर एनआरआई एंड पीआईओ करना है, क्योंकि लास्ट ईयर एसबीआई हमने देखा है कि देयर वर क्वेश्चन फ्रॉम एनआरआई एंड पीआईओ. इसके अलावा चेक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इस बार जो एक नया एडिशन है दैट इज जीएसटी, ये भी हमें स्टडी करना है. फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसको हम मनी मार्केट भी कह सकते हैं और कैपिटल मार्केट भी कह सकते हैं. डीआईजीसीसी 10 पॉइंट्स है जो आपको रीड करने हैं. मुद्रा बैंक, NBFCs, RRBs, small banks, payment banks, financial institutions, RBI policy rates, courts, CBS, MMID मैंने लिखा नहीं है, बता दिया है, demonetization, banking ombudsman and others मतलब कुछ miscellaneous headings होती हैं जैसे mutual funds हो गए उनके बारे में. तो these are the important topics related to banking. एक बार आप दोबारा देख लीजिए. These are the first slide and this was the second slide. Clear? Now comes to the next one, और next है आपके सामने static awareness, और ये है students, these are the important headings of static. National park है, wildlife sanctuaries है. जो states के बारे में पढ़ते जाओ, duties के बारे में पढ़ते जाओ, you have to learn the capital, CM and governor of that. Dams, rivers और cities associated with some rivers और lakes, वो आपको स्टडी करना है.
सेंसस पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ना है, टेम्पल्स, एयरपोर्ट्स। कंट्री कैपिटल करेंसीज का फोकस में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए मैं पंच लाइनर्स भी लेकर आऊंगा, आई एम वर्किंग ऑन दैट। और इसके अलावा जो भी न्यूज में है उनके बारे में पढ़ना है। क्लियर? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वन सेकेंड, इसमें भी यही पॉइंट रहेगा जो न्यूज में है। वेन्यूज ऑफ गेम्स एंड समिट्स, स्टेडियम्स एंड डांसेस एंड फेस्टिवल्स एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। अदर मिसलेनियस में बेसिकली हम वो न्यूज का स्टैटिक बोलेंगे जो पर्टिकुलर पॉइंट्स, जो भी न्यूज है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक है, दैट कुड बी अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। वो एक नया एडिशन, जैसे फूड फेस्टिवल्स एक बार आने शुरू हुए तो फिर आते ही रहते, तो इस तरीके से होते हैं। बट अदर वालों को छोड़ के दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द स्टैटिक अवेयरनेस सेटिंग्स। क्लियर? क्या सबको क्लियर हो गया? पक्का? तो स्टूडेंट दीज आर द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसमें इंक्लूड करा, दैट इज व्हाट नॉट टू डू। आप लोगों को क्या नहीं करना। यार क्या होता है जब जीके पढ़ते हो ना आप, तो आप कभी कभी ऐसे स्टेप ले लेते हो जो आपको नहीं करना होता। तो अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना। 5 पॉइंट्स है। फोकस करना। फोकस किस चीज पे करें इन 5 पॉइंट्स में? सबसे पहला पॉइंट, डोंट फोकस ऑन ईच एंड एवरी न्यूज। भैया हर न्यूज को पढ़ने मत बैठ जाना, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। हर न्यूज को पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि तुम कह रहे हो कि सर मेरे पास तो 15 से 20 दिन है। 15 से 20 दिन में आप मुझे बताओ कि 4 महीने आप कैसे पढ़ाओगे? तो ऐसे तो नहीं होने वाले। तो यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग। इंपॉर्टेंट पे आपको फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन जो आप हमेशा करते हो, यार टू मच डिटेलिंग। यू आर गिविंग एग्जामिनेशंस फ्रॉम द पास्ट में भी अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर। आपको पता है कि इतना डिटेलिंग में वो करंट अफेयर्स को नहीं पूछता। तो यू डोंट हैव टू गो इनटू टू मच ऑफ डिटेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज। एक्चुअली मैं सच बताऊं कि भाई टाइम भी नहीं होगा। तीसरा, भाई सबको रटने मत बैठ जाना। सर जनवरी तो रट ली, फरवरी रह गया। अरे यार रटी क्या है तूने? मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास रिमेम्बरेंस पावर नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, मगअप नहीं करना, रिमेम्बरेंस पावर को इंक्रीज करना। उसके बाद इस वाले 4th वाला जो पॉइंट है, मे भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ जने सहमत हो और कुछ जने सहमत ना हो, तो ठीक है। फर्स्टली रीड द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ एंड देन अटेम्प्ट द क्विज। भैया सुन लो, सबसे पहले कंटेंट पढ़ो। जब मैथ्स भी पढ़ते थे तो पहले कंटेंट पढ़ते थे, कंसेप्ट्स पढ़ते थे। बट हम करंट, जब हम जीए की बात करते हैं तो जीए में होती है न्यूज, या जीए में होता है करंट अफेयर्स। भैया पहले उसको पढ़ो और फिर उसके बाद आप उसको इंक्रीज करो। फर्स्ट रीड द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ एंड देन अटेम्प्ट द क्विज। ये आपको करना है। ये नहीं है कि क्विज कर रहे हो पहले, नहीं, क्विज करना गलत हो जाएगा क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो वही है कि तुम तुक्का मारे जा रहे हो। नहीं, फर्स्ट रीड द करंट अफेयर्स, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करो, देखो कहाँ स्टैंड करते हो। और अगर आप इस एक्टिविटी में आते हो तो जो हमने बात करी थी रिमेम्बरेंस पावर की, यार वो फॉर श्योर वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? और इसके अलावा भाई ज्यादा टू मेनी बुक्स में थी कि ऐसा ना भैया जीके की तैयारी करें क्या सर, ये पूरा बंडल है सारी की सारी जीए की बुक्स है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, यू विल एंड अप इन नथिंग। नहीं, फोकस करो। अरे बुक्स की जरूरत क्या है यार? बीए के भी नोट्स दे रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के भी हम नोट्स दे रहे हैं, स्टैटिक अवेयरनेस के भी हम नोट्स दे रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में तो बहुत ही कुछ दे रहे हैं, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत क्या है? डोंट प्रेफर एनी बुक्स। करंट अफेयर्स की बुक्स में मिलने की भी नहीं है, मैगजीन्स पढ़ने का इतना टाइम होगा नहीं, क्योंकि अब है कितने दिन, 15-20 दिन। आज कुछ सोचो ना, अब मई शुरू हो चुका है, फर्स्ट वीक ओवर होने वाला है, इतना टाइम नहीं आप लोग के पास। तो अपनी स्टडी इस तरीके से फोकस करो। क्लियर? और एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से, यार एक बात है, डेडिकेशन और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। एसबीआई पीओ का एग्जाम है, अगर ये दोनों चीजें मिस हो जाएंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप, इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, मुझे जो फोकस है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज सिलेक्शन एट एनी कॉस्ट। 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, वो आपका हेडेक है। मेरा माइंडसेट सिलेक्शन का है, आप लोग का माइंडसेट भी सिलेक्शन का होना चाहिए। और एक और पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, यार जे आसान है, येस इट इज वेरी इजी, बस पढ़ने का तरीका जो है वो आपको अब से बदलना है। बताइए क्या? अगर आप सब मेरी इस बात से अग्री करते हैं
तो ऑब्वियसली लाइव शो तो नहीं है, बट प्लीज़ मुझे रिप्लाई करे इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। क्लियर? जी आसान है, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, जी आसान है, बट जो पढ़ने का जो तरीका है वो आपको बदलना है। ठीक है? क्लियर? डू रिमेंबर, आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, और मुझे जब मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था तो सिर्फ मुझे एक ही चीज याद आई, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करता है। तो यार बैंकर्स अड्डा और अड्डा 24/7 है जो आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है आपकी शिद्दत से। और आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकर्स भी होंगे जिनका सपना होगा कि आई वांट टू मेक माय करियर, आई वांट टू बी इन इंडियाज नंबर 1 बैंक, दैट इज SBI। और अगर SBI पे आपको जाना है तो डेडिकेशन, विल पावर, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, फोकस, पॉजिटिविटी एंड एटसेट्रा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको करनी है, और फॉर श्योर यू कैन अचीव दिस। क्लियर? सो जैसे लास्ट ईयर मैंने एक बार वो करा था, आई विल बी attempting SBI PO इंटरव्यू दिस ईयर। इस बार का फोकस यही है कि भैया इस बार तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंटरव्यू को अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो ऑन दिस नोट एक लास्ट पॉइंट है मेरे सामने, डोंट बी सेम बट बी बेटर यार। ठीक है, रोज वही चीज करने से कुछ नहीं होने वाला। हर रोज अगर तुम सेम हो तो कहीं यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ध्यान रखना, यू डोंट हैव टू बी सेम, यू हैव टू बी बेटर। और धीरे धीरे ये बेटर क्या हो जाएगा आपके अंदर से निकाल देगा, आप बेस्ट बन जाओगे। एंड दिस इज पॉसिबल। और अड्डा 24/7 टीम, बैंकर्स अड्डा टीम, SSC अड्डा टीम, अनिल सर, सौरभ सर, सब लोग आपके साथ हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस। सब आसान है, you can do it easily. ठीक है, तो on this note, all the best for SBI PO Mains 2017. I will be coming back with the next session on this similar way very soon. Till then, be happy, be confident, all the best. Thank you, and do subscribe the channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ. You are missing out to many videos. And also do share your feedbacks यार, क्योंकि this is the new thing which we are trying. I want to know the feedbacks कि क्या ये कहते ना आप लोग को पसंद आया, नहीं आया, अपीलिंग है, नहीं है, जो भी feedbacks है, we are open for every time of feedbacks. ठीक है, all the best, thank you.